Hello students, today we are going to start with a new chapter of your 12th class, that is alcohols, phenols and ethers. First we will see the alcohol part. Alcohols are very important from pharmaceutical point of view as well as in our daily life also. So first let's take an example of ethanol. Ethanol is used as a used in the preparation of beverages. It is used in the preparation of rectified spirit. It is used as a solvent in various number of medicines, that is in especially in cough syrups, and alcohols are also used for the preparation of various types of compounds which we use in our daily life, that is sugar we eat, cotton for fabrics, and newspapers, papers, notebooks, paints, varnishes, lacquers, and it is also used as a solvent in various medicines. So this was all about the uses of alcohols. Now alcohols are what? When one of the hydrogen of an alkane is replaced by an OH group, the compound is termed as alcohol. So this is the formula for alcohol. Now let's see the classification of alcohol. So first is classification of the alcohol. This classification is on the basis of number of OH groups. So alcohols are classified into four basic types. One is called as, first one is monohydric alcohols. Second is dihydric alcohols. Third is trihydric alcohols and polyhydric alcohols. Monohydric alcohol means what? Such alcohols which contains only one OH group. सिर्फ एक ही OH ग्रुप उनमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स बुलाते हैं. इफ दे कंटेन टू OH ग्रुप्स दे विल बी टर्म्ड एज व्हाट? डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स. तीन OH ग्रुप रहेंगे तो हम उनको क्या बुलाएंगे? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स. और अगर मोर देन 3 रहेंगे तो उसे क्या बुलाते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स. मोर देन 3. ठीक. अब बनते कैसे होंगे ये? When one of the hydrogen of a alkane is replaced by one OH group, it will be termed as monohydric alcohol. When two hydrogens of an alkane are replaced by two OH groups, it is termed as dihydric alcohol. When three hydrogens of an alkane are replaced by three OH group, it is termed as trihydric alcohol. And when more than three hydrogens of an alkane is replaced by more than three hydroxyl groups, it is termed as polyhydric alcohols. Let's see the examples for monohydric alcohols. First example for monohydric alcohol is methanol, that is CH3OH. एक ही कार्बन एटम वाला लिया है. डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो इसमें 2 कार्बन एटम मिनिमम लेने ही होंगे. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि whenever a carbon carries more than one OH group, it is highly unstable. तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है डाइहाइड्रिक अल्कोहल. इसका नाम क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल. ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल this प्रोपेन 1,2,3 ट्रायॉल. और पॉलीहाइड्रिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सॉर्बिटॉल. सॉर्बिटॉल इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ polyhydric alcohol. Monohydric alcohols are further classified into 3 types. One is primary monohydric alcohol, secondary monohydric alcohol and tertiary monohydric alcohol. तो primary कैसे होगा देखो, अगर CH3CH2OH है, means when the OH group is attached to the primary carbon, it will be termed as what? Primary alcohol. ठीक है. If the OH group is attached to a secondary carbon, तो ये वाला secondary carbon है, यहाँ पर अगर OH group attach होगा तो हम उसे क्या बुलाएंगे? Secondary monohydric alcohol होगा, वो secondary alcohol भी बोलते हैं. Tertiary, when the OH group is attached to a tertiary carbon, it will be termed as tertiary alcohol. सो ये हो गया क्लासिफिकेशन किसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का. ठीक है, तो समझा आपको मैंने जो बताया. सो अब इसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ यहीं पर पढ़ा देती हूँ, दैट इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर या नॉमेनक्लेचर के बारे में बता देती हूँ अल्कोहल्स का. तो नॉमेनक्लेचर पार्ट में क्या है?
कि एज हमने नॉमेनक्लेचर 11th क्लास में जो पढ़ा था उसमें हम दो ही सिस्टम्स पढ़ते थे, एक था कॉमन नेमिंग और दूसरा था IUPAC नेमिंग। यहाँ पर इन केस ऑफ अल्कोहल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेमिंग सिस्टम। वन इज कॉमन नेमिंग, सेकेंड इज कार्बिनॉल सिस्टम एंड थर्ड इज IUPAC नेमिंग। ठीक है, कॉमन नेमिंग क्या होता है? कॉमन नेमिंग बहुत इजी है, इसमें हम कैसे लिखते हैं? अल्किल अल्कोहल। ठीक है, जो भी उसका अल्किल पार्ट होगा उस पे सिर्फ अल्कोहल लगा देते हैं। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं आपको, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? देखिए, इसका अगर मुझे कॉमन नेम लिखना है, कितने अल्किल पार्ट है, अल्किल पार्ट में कितने कार्बन है, तो हम इसे क्या बुलाएंगे? इथिल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथिल अल्कोहल। है बहुत इजी। अगर मुझे इसका नाम लिखना है, ये कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप है बेटा, ये सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है ना, तो इसे क्या बुलाते हैं? आइसो। और कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में ये टर्शियरी कार्बन एटम है, तो और कितने टोटल कार्बन एटम्स? 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझा? फिर आपको कॉमन नेमिंग बहुत इजी है। अब कार्बिनॉल सिस्टम बताते हैं, वो भी बहुत इजी है। कार्बिनॉल सिस्टम यानी क्या होता है? कार्बिनॉल सिस्टम मीन्स व्हाट? इसमें मिथिल अल्कोहल को कार्बिनॉल बुलाते हैं, यानी एक कार्बन और एक OH ग्रुप है, इस पूरे को हम क्या बुलाते हैं? कार्बिनॉल बुलाते हैं। तो अब अगर मुझे कार्बिनॉल सिस्टम से इसका नाम लिखना है, तो देखिए ये ग्रुप को हम तो कार्बिनॉल बुलाने वाले, इसमें क्या ग्रुप लगा हुआ है? मिथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथिल कार्बिनॉल। समझा आपको? बहुत इजी है। इस COH ग्रुप को क्या बुलाते हैं? कार्बिनॉल बुलाते हैं। बस फिर अब मिथिल ग्रुप्स देखना है उसमें, तो अभी इसमें ये हो गया मिथिल अल्कोहल को ही कार्बिनॉल बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? कार्बिनॉल। और ये इसमें एक मिथिल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मिथिल कार्बिनॉल। इस कंपाउंड को देखिए, इस ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं? कार्बिनॉल। और कितने मिथिल लगे हुए? 2 मिथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डायमिथिल कार्बिनॉल। और इस कंपाउंड का देखिए, इसमें ये ग्रुप को हम कार्बिनॉल बुलाते हैं, तो कितने ग्रुप मिथिल ग्रुप लगे हुए हैं? 3 मिथिल ग्रुप लगे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइमिथिल कार्बिनॉल। ठीक, समझ में आया? बहुत ही इजी सिस्टम है ये भी। अब बहुत रेयरली यूज होता है, पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आपको ये क्लियर करके दिया। नेक्स्ट, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग में क्या होता है? जैसे अल्केन का नाम होता है, बस उसमें अल्केन के नाम में से हम क्या करते हैं? OL ग्रुप ऐड करते हैं और E कट करते हैं, क्योंकि हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, IUPAC नॉमेनक्लेचर में, कि whenever your secondary suffix starts with a vowel, omit the last letter of the first suffix, इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं? अल्केनॉल बुलाते हैं। ठीक है, तो अब इसका IUPAC नेमिंग से नाम कैसे होगा? देखिए, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन एटम है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए एन हो जाएगा, और OH लगा हुआ है, इसीलिए ऑल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इस ग्रुप में देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है। 3 कार्बन एटम है, तो क्या बोलेंगे? हमसे प्रॉप बुलाएंगे। और सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या बुलाएंगे? एंड बुलाएंगे। OH है, इसीलिए OL लगाएंगे। बट हमारा O कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? हमारा जो O है वो सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है बेटा। देखो, अगर मैं इसका नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन पे OH है, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपैन 2 ऑल हो जाएगा। IUPAC नेम इसका क्या होगा? प्रोपैन 2 ऑल होगा। अब इस कंपाउंड का नाम देखते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन एटम है, इसीलिए क्या बुलाएंगे? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए एन। OH है, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? सेकेंड, इसीलिए OL 2 OL। और फिर इसके ही ऊपर मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथिल। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इसका IUPAC नेम 2 मिथिल प्रोपैन 2 ऑल हो गया।
ठीक है, समझे आपको? तो अभी मैंने इसी में क्लासिफिकेशन में ही मोनोहाइड्रिक का पहले आपको क्लासिफिकेशन बता दिया और साइमल्टेनियसली हमने इसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया है। ठीक, सो ये क्लासिफिकेशन जो हमने किया था वो किसके बेसिस पे था? नंबर ऑफ OH ग्रुप के ऊपर था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। Now, the next classification of alcohol is on the basis of the type of the hybridized carbon. OH ग्रुप कौन से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे बैठा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो अब जैसे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें से हम ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 बेसिक टाइप्स। वन इज if the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon। ठीक है, तो अब देखो उसमें कैसा होगा। तो जो हमने पढ़ा था इससे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स जो थे उस पर ही है, मीन्स एलिफेटिक अल्कोहल्स। एलिफेटिक में भी, इसमें भी हम क्या बताने वाले? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में पढ़ा था। एक OH ग्रुप पर सभी किसमें लगे रहते थे? प्राइमरी, एक OH ग्रुप पर किसको लगा होता था? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये एक हो गया जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कोई लगा हुआ है। इसी को अभी मैंने आपको पढ़ाया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बुलाते हैं। ये एक टाइप हो गया। तो अल्कोहल्स है ये सारे के सारे। दूसरा एक टाइप होता है, इसी के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा होता है एलिलिक अल्कोहल्स। एलिलिक अल्कोहल्स मीन्स व्हाट? जब एलिल कार्बन को OH ग्रुप लगा होता है उसे हम एलिलिक अल्कोहल बुलाते हैं। एग्जाम्पल, अगर 3 कार्बन एटम्स हैं उसमें से एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और जो OH ग्रुप है वो किसको लगा हुआ है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को लगा हुआ है, तो हम उसे क्या बुलाते हैं? एलिल अल्कोहल बुलाते हैं। इसका नाम क्या है? एलिल अल्कोहल। ठीक है, बाकी की वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। 2 बॉन्ड हो गए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 3, तो 1 हाइड्रोजन, 1 2, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो ये देखिए, ये भी प्राइमरी यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ही OH ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए ये भी इसी वाले पार्ट में आएगा, एलिलिक अल्कोहल। मीन्स इसके 2 पार्ट हमने पढ़ लिए, एक ये जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आया था और दूसरा एलिलिक अल्कोहल। एक और होता है वो है बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल्स मीन्स व्हाट? जब बेंजीन ग्रुप भी होता है बट जो OH ग्रुप है वो कहाँ पर लगा हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ही लगा हुआ है, तो हम उसे क्या बुलाते हैं? बेंजीलिक अल्कोहल बुलाते हैं। ये एक एग्जाम्पल बताया। इसमें भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी पढ़ सकते हैं बेटा। जैसे मैंने यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बताया, सेम वैसे ही मैं यहाँ पर भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स बता सकती हूँ। देखो कैसे। अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लिया था एलिल का। ये कौन सा एलिल अल्कोहल हो गया? प्राइमरी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर सपोज करो मेरे पास कंपाउंड ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, यहाँ पर एक H और यहाँ पे OH। देखिए ये कार्बन OH जो है ये है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट ये कौन कितने कार्बन को अटैच्ड है? 2 कार्बन को, इसे हम इसे क्या बुलाएंगे? सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल बुलाएंगे। ठीक, सेकेंडरी एलिल अल्कोहल बोलेंगे। अब एक और बता देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, C, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे और यहाँ पर एक OH ग्रुप। देखो ये जो कार्बन है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट ये किसको, कितने कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है? 3 कार्बन को, इसीलिए ये क्या हो गया? टर्शियरी एलिल अल्कोहल हो गया। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए बेंजीलिक अल्कोहल, जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन है और फिर OH लगा हुआ है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? बेंजीलिक अल्कोहल बुलाते हैं या फिर बेंजील अल्कोहल बुलाते हैं। ठीक है, इन्हें एरोमेटिक अल्कोहल्स भी बुलाते हैं। बेंजीन रिंग होना इसमें ज़रूरी है, तभी हम उसे बेंजीलिक अल्कोहल बुलाएंगे। ये मैंने एक प्राइमरी बताया क्योंकि ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली एक ही कार्बन को अटैच है, इसीलिए ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी बेंजील अल्कोहल है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर
CH है और एक CH3 है और फिर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन देखो सेकेंडरी है, तो इसको क्या बुलाएंगे, सेकेंडरी बेंजील अल्कोहल बुलाएंगे। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन है और वो दोनों CH3 ग्रुप से अटैच्ड है और एक OH ग्रुप है, तो अब देखिए ये जो कार्बन जिसको OH लगा हुआ है ये कौन से कार्बन पे है, टर्शियरी, तो हम इसे क्या बुलाएंगे, टर्शियरी अल्कोहल बुलाएंगे, टर्शियरी बेंजील अल्कोहल बुलाएंगे। ठीक है, समझ में आया फिर आपको ये। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, जब सारे OH ग्रुप किसको लगे हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को लगे हुए हैं, तब हमें ये क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, नाउ अब हम जो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। पहले मैंने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का बताया था, अब कौन सा बता रही हूँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है विनिल अल्कोहल्स। विनिल अल्कोहल का मतलब क्या, दो कार्बन विद वन डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप इज अटैच्ड टू इट, सो दैट इज विनिल अल्कोहल। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C OH ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज विनिल अल्कोहल। नेक्स्ट इज phenols. These are also such compounds in which OH group is attached to sp2 hybridized carbon. Example, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप लगा होगा तो हम इसे क्या बुलाते हैं, फिनॉल बुलाते हैं। ठीक, समझे आपको, ये है विनिल अल्कोहल और दूसरा है फिनॉल्स। तो विनिल अल्कोहल वैलेंसी मैंने सेटिस्फाई नहीं की थी, ये दो हाइड्रोजन है जगह, 1 2 3 बॉन्ड है इसीलिए एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो ये विनिल अल्कोहल। फिनॉल और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, मैंने वहाँ पे फिनॉल सिर्फ लिखा हुआ है, मिथिल फिनॉल हो सकता है, नाइट्रोफिनॉल हो सकता है, ऐसे अलग अलग फिनॉल्स हो सकते हैं। यानी क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप भी है और एक CH3 ग्रुप भी है, तो हम इसे क्या बुलाते हैं, मिथिल फिनॉल बुलाते हैं। अगर और CH3 की जगह पर NO2 ग्रुप लगा दिया होता तो क्या बुलाते हैं, नाइट्रोफिनॉल बुलाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू।